never get old in my soul. I'm on a roll, I'm going all in, never fold. I'm in control, the driver's seat is made of gold. I'll teach you how to do it one day when my story's told. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. Yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy with progressing. I don't ever second guess it. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to something so impressive. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch,
play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to... पहचान हो गई जाग जाग के मंजिल आसान हो गई बांधनी एक नई दोस्ती पाकिस्तानी तुझे सलाम 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 जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए राह के सभी कांटे रास्ते से हट गए दूसरा इस तरह है कोई पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तान
हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लॉक करने के मुताबिक बताऊंगा कि आप फाइट करते हो, आप पे कोई हमला करता है तो किस तरीके से आपको उसको रोकना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखें कि अगर कोई आपको पंच मार रहा है, ठीक है, या इस तरह अटैक कर रहा है तो उसको किस तरह रोकना है। कोई सामने से आपको पंच मार रहा है तो आप उसको ये हाथ ले आएगा, ठीक, उसका पंच आके यहाँ फंस जाएगा, ये ब्लॉक है पंच वाला। इस तरह भी कोई मारो तो यही तरीका, ठीक है। तो दूसरी तरीका ये आप उसके वार को ये रोकेंगे और ये हिट करेंगे उसको, ठीक है। अगर वो आपको किक मारना चाह रहा है, पैर से मार रहा है, ठीक है, जैसे ये किक मार रहा है तो आप उसको किक को जो है ये ब्लॉक है, ठीक है। ये हाथ में आपको ऊपर करके दिखा दो ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। ये जो चीज़ है आपकी इस हिस्से से रोकना है, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कर रहे हैं आप, ये ब्लॉक कर रहे हैं सामने, ये ब्लॉक कर रहे हैं आप, ठीक है। ये ब्लॉक किया, इससे ही मार सकते हैं आप, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद अगर बंदा ज़्यादा करीब है तो ये ब्लॉक किया, उसके बालों को पकड़ के यहाँ से मार दिया उसको, ठीक है। ये बालों से पकड़ा उसको, ये हिस्सा उसको मार दिया, ठीक है। अगर वो ज़्यादा करीब है या दूर है थोड़ा और आपको मार रहा है तो आप आगे बढ़ के ये रोकेंगे, ये ब्लॉक करेंगे और ये मारेंगे उसकी इस जगह पे, ठीक है। ये ब्लॉक किया, ये मारा करीब आके, ये ब्लॉक, ये, ठीक है। इसी तरीके से ये ब्लॉक किया, ये मारा, ये ब्लॉक, ये मारा पंच, ठीक है। और अगर यहाँ से वो कर रहा है, पैर किक मार रहा है वो, ये किक आप रोकेंगे, ठीक है। ये उसका पैर आया, पैर ये मारा, वो किक रोका ये आपने और इस वाले पैर से उसको हिट कर दिया, सही है। ये किक रोका, ये हिट कर दिया, तो ये अटैक है आपका। ये ब्लॉक के तरीके कि आप किस तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं और किस तरह से उस पर आप अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, आप रूटीन में बना लें कि आप डेली जो है तकरीबन 1 घंटा चलें। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है या मौका नहीं मिल रहा, लेडीज़ या जेंट्स दोनों से मैं मुखातिब हूँ, तो आप अपने रूटीन में ये बना लें कि आपको रोज़ाना 1 घंटा कम से कम चलना है, वॉक करना है, पैदल चलना। आपको चलने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। आप खुद ब खुद अपने अंदर देखेंगे, तब्दीली महसूस करेंगे अपने अंदर। आप अगर आप पैदल चलना शुरू करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जितने देर आप चल सकते हैं उतने चलने की अपनी आदत बनाएं। और इसके अलावा खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात करें। खाने के बाद जो है आप कम से कम 5 मिनट वॉक करें खाने के बाद। खाना खाने के बाद फ़ौरन ना सोएं आप, क्योंकि असल जो बीमारी है वो पेट के अंदर से, अगर आपका जो मैदा है वो कमज़ोर होता है, आप जो खाना खा रहे हैं वो आपसे हज़म नहीं हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आपके अंदर 10 बीमारियाँ, पेट से ही 10 बीमारियाँ जन्म लेती है और फिर आस्ते आस्ते इंसान मखलूज हो जाता है, बीमार होता जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपके ज़िंदगी में इसको शामिल रखें और डेली एक्सरसाइज को आप अपने मामूल में बना लें। पैदल चला करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, इसके बहुत फ़वाइद हैं। गाइस, आज आपसे स्टिक फाइट के मुतालिक बात करूंगा। मैं स्टिक की फाइट आपको बताऊंगा कि स्टिक से किस तरह आपको लड़ना है और लाठी स्टिक को किस तरह आपको चलाना है, स्टिक से फाइट किस तरह करनी है, ये आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो साइज़ ये होनी चाहिए स्टिक की जो आप देख रहे हो, लेकिन चूंकि जगह कम है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये पीछे दीवार पे और सामने कैमरे पे ये लग सकता है स्टिक, तो ये छोटे स्टिक से मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ टेक्निक समझना आपको कि किस तरह इसको चलाना होता है, बेसिक वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं इधर साइड पर रख देता हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो वाला तरीका है जिससे आप बंदे को हिट करेंगे। बंदे को आप हिट करेंगे, ये आके थोड़ी भी लग सकता है ये, ठीक है, या आके सर पे लगेगा, ठीक है, कांधे भी लग सकता है, यहाँ मार सकते हैं आप, इस तरफ मार सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसको
हाथ का तरीका देख लें कि उल्टे हाथ जो है उसको आप नीचे रखेंगे, सीधे हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। ये आपका सीधे तरफ से डाउन हो गया, ठीक है। ये आप अटैक कर रहे हो सीधे की तरफ, ठीक है, ठीक है। फिर आप यहां से लेकर आ रहे हो, ये मारे उसके चेहरे पे, ठीक है। ये इस तरह भी मार सकते हो आप, इस तरफ भी मार सकते हो आप, ठीक है। जब आपको पकड़ने का तरीका आ जाएगा, अच्छा ये गिरफ्त है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं घुमाने का जो आपका है, ये अगर आप बिल्कुल इसको सख्त पकड़ लेते हो तो फिर आप इसको मूव करने में मसला होगा। इसको जब आप मारने के बाद जब दोबारा आप इसको घुमाने के लिए जा रहे हो, ये चीज़ पकड़ के हिट, इसमें ताकत होनी चाहिए पकड़ने की, ताकि लगे बंदे को तो जाके वो फेंकाए, ठीक है। ये वाले आपको स्टिक के मैंने बताए, और बाकी जो आप चला रहे हो तो ये अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये पकड़ा बंदा इसको, ठीक है। अच्छा, स्टिक आप किसी को हिट कर रहे हो, मारना सर पे, ठीक है। पीछे से कोई आ रहा है तो आप इसको पीछे इस तरह भी ले जा सकते हो, पीछे जो आ रहा है ये जाके उसके सर पे लगे, ऐसे पीछे सामने, पीछे सामने, ये, ठीक है। फिर आप घूम के ये मार सकते हो, फिर आप घूम के ये मार सकते हो, ये, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके स्टिक चलाने के, आप उसको बस लेके आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस आप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द स्टिक के फ़वाइद, स्टिक की फ़ाइट जो है आपको ये समझ में आ जाएगी। Fikir var, bu trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada G-Flow Mus'ab anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler, onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır, biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam. हेलो फ्रेंड, आज हम पार्ट 2 पे काम करेंगे। कल आपको मैंने बताया था नेंचक पार्ट 1 के मुतालिक, और आज आपको मैं बताऊंगा नेंचक पार्ट 2 के मुतालिक। पार्ट 2 में आपको नेंचक को किस तरह पकड़ना है, वो तो कल उस दिन आपको मैंने बताया था कि किस तरह आपको अटैक करना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नेंचक को पकड़ना किस तरह है, इसकी रोटेशन कैसे घुमानी है, नेंचक को किस तरह आप मूव करेंगे और किस तरह इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेंचक को आपको जो इस्तेमाल करना है वो होगा
पीवीसी पाइप पे जो होता है, पीवीसी पाइप से मुराद ये है कि ये लोहे पे और लकड़ी पे ये नैनचेक आपको मिल रहा होता है, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस के दौरान चोट लग सकती है, आपकी कोहनी पे, आपके चेहरे पे, आपकी हड्डियों पे, कहीं भी चोट लग सकती है। लेकिन अगर आप पीवीसी पाइप वाली ले लेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपको उससे चोट नहीं लगेगी, प्रैक्टिस के दौरान आपको उससे चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब आप जो पहला जो रोटेशन वाली जो बात है, अब देखें आप ये नंचाकू है, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के अगर आप घुमा रहे तो ये बैलेंस नहीं बन रहा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से भी नहीं पकड़ना आपको, थोड़ा सा दूर करके ये, ठीक है। अब ये आप इसको मूव करें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब जो है आपको जो इसको पकड़ने वाली जो चीज़ है ये, ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रा सा देखना होगा, जो आप यहाँ पकड़ ले उल्टे हाथ से, ठीक है। ये चीज़ को ज़रा सा देखना, फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी पकड़ जो है गिरफ्त होनी चाहिए सही तरह। आप जब ये उठा रहे हो, जब इसको यहाँ से आप दूसरी तरफ मूव कर रहे हो, ये इस तरफ कर रहे हो, ये पकड़ लिया, ये इस तरफ कर रहे हो, यहाँ पर ये पकड़ लिया, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो आप लेकर आए हो, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकर आए और ये इधर आगे इसको पकड़ लिया, ये आपका ये हिस्सा जो है इधर आगे ये कपड़े की वजह से ये फंस रहा है, लेकिन आपको ये लूज रखना आपको, ताकि ये आसानी से ये इधर आगे पकड़ ले इसको, ठीक है। ये आसानी से आगे पकड़ ले, यहाँ पे इस जगह पे इसको पकड़ करना है, ये वाली, ठीक है। तो उसको आपको पहले हाथ से पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है, सही है। तो ये प्रैक्टिस आपको तकरीबन 50-60 मरतबा करना है, जिससे आपको इसकी रूटीन जो है बैलेंस आपका बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आप उल्टे हाथ पे आ जाएंगे। अभी आप ये राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये देखें, सही है। दोबारा देखें इसका, यानी इसको आप जब फेंके कैच तो ये आपके हाथ में आए, ये हाथ से छूटे नहीं, हाथ से छूटे नहीं, ये हाथ पे इसकी पकड़ बने, ठीक है। जब आप ये फेंक रहे हैं इसको उठा के लेकर आ रहे हैं, तो ये हाथ पकड़ा, ठीक है, ये पकड़ बने, देखें आप, ठीक है। तो इसी तरह आप घूम जाएंगे यहाँ, और ऐसे भी आपको चलते रहने की प्रैक्टिस करिए, कदम बढ़ाना, तो ये फाइट मारा, ये मारा, ये, ठीक है। फिर आप मूव कर देंगे, फिर ये उठाया, ठीक है। फिर आपको रोटेशन करना है, इसके रोटेशन पे आप, ठीक है, सही है। ये तो रोटेशन और आपकी पकड़ हो गई, जो हाथ की पकड़ आपको मैंने बताया है, इस तरह पकड़ना आपको हाथ पे, ठीक है। अब आप आ जाए इस तरफ, जो नेचर की जो आपकी रूटीन है, रोटेशन जो आपको घुमाना है, ठीक है ना। यानी आप ये जो लेके आ रहे हैं इस तरह से जा रहे हैं, ठीक, और ये इस तरह, ये आपको
लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है पीवीसी वाले से। पीवीसी वाली नंचक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सामान लेकर आओ नंचक पीवीसी वाली। ठीक है, ये नंचक आप देख लें, ये लकड़ी पे ये चेन है, इसमें लगा हुआ, ये लकड़ी है, सही है। और ये आपके पीवीसी पे है, ये पीवीसी पाइप है, ठीक है। ये आपके अगर लग भी जाती है, आपको इधर लग जाए, ठीक है, जब काम मिल रहा सर पे लग जाए, इधर लग जाए, पैर पे लग जाए, तो इससे आपको चोट नहीं लगेगी। ये देखिए आपके लिए आसानी से घूम जाएगी, ठीक है। ये आपको जिसम में अगर आगे पीछे कहीं करते हुए लग भी जाए तो आपके लिए आसानी बनेगा, ठीक। ये साइज़ छोटी है इसकी, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए आसान होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन है। प्रैक्टिस आप करेंगे इस पीवीसी वाली पाइप से, ये आसान है, बिल्कुल ईजी है, और इससे चोट भी नहीं लगती है। लेकिन ये जो है आप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लकड़ी वाली है और ये बहुत हेवी है, हेवी भी है, और इससे आप किसी को अगर हिट करते हैं, किसी को चोट लगती है इससे, और ये मारते हैं, तो ये बहुत ही डेंजर है, ठीक है। तो पार्ट 1 पे मैंने आपको बताया था, ये दोबारा मैं आपको एक एक प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। ये पार्ट 1 पे आपको मैंने बताया था, ये सामने हिट करने वाली, सही है, और बताया था ऐसे, ठीक है। इसी तरह राइट लेफ्ट दोनों हाथ से ये करना है। और अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है वो हाथ की पकड़ वाली, ठीक है, ये पकड़ वाली, ठीक है। सही है। उसके अलावा ये आपको पोजीशन घुमाने वाली है, ठीक है। इधर भी घुमाएं, इस बात पे ले लें, इधर भी घुमाएं, ठीक है। और फिर आप आपको इसको लेके इस तरह सामने की तरफ लेके एक प्रैक्टिस ये करें कि आपके फुट के चेहरे पे ना लगे, ये बैलेंस वाली है, ठीक है। ठीक है, अगर ये आपके हाथ से छूट जाएगा तो आपके चेहरे पे आके ले जाएगा, ठीक है। तो चेहरे पे ना लगे, इसलिए पीवीसी वाले से आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जाके ये डेंजर को आप परचेस करके ले आए, और पता चला प्रैक्टिस के दौरान आपको ये चोट लग जाए और आपके चेहरे पे, नाक में कहीं भी लग जाए, तो फिर आप बोलेंगे यार हसनैन शेख के कहने पे हमने प्रैक्टिस की थी और ये हाल हो गया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे आपको गलत गाइड करूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करें नंचकों के मुताबिक, तो आप पीवीसी वाले नंचक लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, ये इस तरह भी चलाना होता है ना कभी कभी, ये जो सामने देखें, तो अगर आपको इसको पकड़ना है, अब ये यहाँ आ गया, कैसे पकड़ेंगे आप इसको, तो ये आपके हाथ है, सही है। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ये प्रैक्टिस आपको ठीक है। कराटे की दुनिया के अगर पहचाना जाता है कराटे की दुनिया में, तो आपको पता है ब्रूस ली का एक नाम है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ब्रूस ली जो है वो एक फाइटर, बहुत बेहतरीन फाइटर गुजरा है, और कराटे के लोग पहचानते भी हैं ब्रूस ली की वजह से, ठीक है। कराटे की फील्ड में आने से मुराद ये है कि आपको, आपका शरीर, आपका जिस्म बहुत मजबूत है, आप बहुत ही जानदार हो, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, और जिसको हम कहते हैं जिगर, तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते। कहीं भी जाते हैं आप, कहीं किसी से भी, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आपके जिगर में, आपके दिल में, आपके दिमाग में जज्बा होना चाहिए, ठीक है। हिम्मत जिसको कहते हैं, हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बड़े से बड़े चीज़ों से टकरा सकते हो, लेकिन आप खुद पहाड़ हो और आपकी बहुत ताकत है आपको, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, आप भले
कुछ भी हासिल कर लो, कितनी ही आपकी ताकत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है और दिल के अंदर खौफ है और लड़ने से आप घबरा रहे हो, मुकाबला करने से आप घबरा रहे हो, हिम्मत जिसको कहते हैं, हिम्मत नहीं है तो फिर आपके लिए बेकार है कुछ भी। और आप अगर कमज़ोर भी हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको चोट लग जाती है, आपको गोली लग जाती है, आपका पैर टूट जाता है किसी वजह से भी, और आप उसका मुकाबला कर सकते हो, आप उसको दबाकर खून रोक के और अपने आप को महफूज जगह पे पहुंचाते हो, तो ये हिम्मत की बात है। ये ना हो कि एक कट लग जाए, कट लगने के बाद खून निकले और आप देख के घबरा जाओ, बेहोश हो जाओ, गिर जाओ, वहाँ पे हिम्मत हार जाओ, तो फिर मज़ा नहीं है मेरे भाई। मज़ा तब है कि आपको अपने अंदर हिम्मत पैदा करना है, इतना हिम्मत पैदा करना है कि आप ये सोच लो कि आपके आगे 10 भी बंदे आ जाएं, आप उनको मारोगे। ठीक है, फाइट की टेक्निक है बहुत सारी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये नेंचक के मुतालिक बात चल रही थी, तो इसलिए मैं सिर्फ नेंचक पे बात कर रहा हूँ। अब मैं फाइट के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा, तो उसमें भी एक तफसील है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूँ हसनैन शेख। दोस्तों, मैं जापान कराटे एसोसिएशन से ब्लैक बेल्ट मैंने किया है, और जब मैं ये ब्लैक बेल्ट के लिए मैं कोशिश करता रहा, जब मैं ब्लैक बेल्ट मुकम्मल किया, तो इस दौरान तकरीबन मुझे 6 से 7 साल लगा ब्लैक बेल्ट हासिल करने में। मैं आपसे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत ही टैलेंटेड लोग भी हैं मौजूद पाकिस्तान के अंदर। ये जैपनीज़ कराटे हैं, चाइना हैं, चीन वाले हैं, हम उनके तरीके पे चलने की कोशिश करते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। ठीक है, इसकी वजह ये कि हमसे, हमारे लोगों से माजरत के साथ, चूँकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग मेहनत से पीछे भागते हैं, और मेहनत में अज़मत है। जैसा कि आपने सुना है कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मुसन्निफ़ बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा पेंटर बनना चाहते हैं, अलगर्ज़ कोई भी फील्ड हो, उसके लिए आपको मेहनत दरकार है। मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसी तरह कराटे का जो फील्ड है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत मेहनत है। इसमें हम जब लगे कराटे सीखने के लिए, तो हमें एक फॉर्म दिया गया, उसमें लिखा होता है कि अगर आपके बच्चों के हाथ पैर टूट जाएं कराटे सीखने के दौरान, तो क्लब वाले ज़िम्मेदार नहीं होंगे, और हमारे पेरेंट्स जो है उस पर सिग्नेचर करके, ओके करके हमें एडमिशन वहाँ पे करवाएं। तो वहाँ पे सख्ती झेलनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके इंसान अपने आप को इस काबिल करता है कि वो रिंग में उतर के मुकाबला कर सके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नौजवानों में ये सोच बिठा दी गई है कि कराटे से क्या होता है। आजकल तो असलहे का दौर है, एक गोली मार दी जाएगा, बंदा मर जाता है। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये हकीकत है। लेकिन कराटे की फील्ड ऐसी चीज़ है कि अगर बंदा उसको ज्वाइन कर लेता है, तो वो अपने अंदर एक मजबूती महसूस करेगा, और मजबूती महसूस करके वो दुनिया का मुकाबला कर सकता है, हर आने वाली मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो किसी चीज़ से घबराता नहीं है। वो शख्स है, वो लड़का है या वो लड़की है, जो भी कराटे के फील्ड में आ जाता है, तो वो इन चीज़ों के अंदर से डर, खौफ, ये इस नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कराटे सीखने के वक्त हमसे हेल्प भी लिया जाता है कि आप कराटे के सीखने के बाद आप नाजायज़ किसी को मारेंगे नहीं, किसी के साथ आप नाजायज़ करेंगे नहीं। बाकायदा कुरान शरीफ पे हल्फ लिया जाता है। ये कराटे जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस दौरान हमसे हल्फ लिया गया था कि हम इसके नाजायज़ किसी के साथ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कराटा वो फील्ड है कि जिससे आप अपने आप को मजबूत करेंगे, आपके जिस्म मजबूत होगी, आपके हड्डियां मजबूत होंगी, और आप अपने दुश्मन, वो दुश्मन कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनके दिलों में लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इंसान को गोली मार के चले जाते हैं, डकैत हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, उनसे अपने दिफा करने के लिए कराटा सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
कराटे सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ख़ुद भी कराटे पे जाएं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं कराटे के लिए। आपके करीबी जो भी जिस मुल्क से भी आप वाबस्ता हैं, जहाँ भी आप रिहाइश पजीर हैं, जो जिस ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, जो मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर फ़िटनेस की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ डालें। आपके बच्चों को अगर फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है, उसको फ़ुटबॉल की तरफ डालें। अगर वो क्रिकेट की तरफ इंटरेस्टेड है तो उसको क्रिकेट की तरफ लगा दें। और भी अगर वो दीगर जो गेम है जिसमें भाग दौड़ है, एक्सरसाइज है, तो इससे आपका बच्चा, अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप भी फिट रहेंगे, आपके अंदर बीमारी पैदा नहीं होगी, आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपके अंदर के आज़ा जो है वो मजबूत रहेंगे। फिर दूसरी बात ये कि आप का बच्चा या आप जो भी इस फील्ड में आता है वो अपने आप को पान, गुटखा, सिगरेट, निस्वार, दीगर जो बुराइयां, उससे वो अपने आप को बचा के रखेगा। क्योंकि हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा बुराई है वो आजकल हर लड़का आप देख लें, वो जैसे ही जवान होना शुरू होता है उसके मुंह में पान आ जाता है, छालिया आ जाता है। बहुत ही ये हमारे अलमिया है कि हमारे माशरे में इस चीज़ को फ़रोग़ दी जा रही है, और लोग, हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस पे एक्शन लें ताकि ये चीज़ें हमारे नौजवानों से ख़त्म हों। बआसानी ये चीज़ें मिलती हैं और लोग, लड़के, हमारे नौजवान नस्ल पान की तरफ, गुटखे की तरफ जा रहे हैं। और पान और गुटखा कितना नुकसान है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो आपके खून में वो चीज़ें शामिल हो रही हैं जो आप खा रहे हो। पान है या गुटखा है या निस्वार है, जो भी नशा है वो आपके खून के अंदर दाखिल हो रही है, और वो फिर वो खून के अंदर दाखिल होकर जो आपकी आने वाली नस्ल है, आप शादी करते हैं, शादी होने के बाद जो आपकी लाइफ है, आपके जो बच्चे पैदा होंगे, वो खून के अंदर शामिल होकर वो उनके अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो बीमारियां। तो खुदारा मेरे भाइयों, इन चीज़ों से आप बचें, अपने बच्चों को भी तालीम दें, तरबियत दें कि वो इन चीज़ों से बचें और सख्ती से पेश आएँ। इन पान, गुटखा, सिगरेट, निस्वार, इन सब चीज़ों से आप बचाएँ। ये शुरुआत है नशे की, फिर वो लड़का आपका दीगर बड़े नशे की तरफ जाएगा। तो भले आप उनको इस फील्ड में डालते नहीं है, कराटे की तरफ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स का बहुत ही अहम किरदार है अपने बच्चों की परवरिश पे। अब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को तरबियत दे सकते हैं, और इस माशरे के लिए वो उसको नासूर बनाएं या कारामद बनाएं, ये वालिदैन के ऊपर होता है। वालिदैन घर से तरबियत देते हैं। वालिदैन बच्चों को ये एहतराम सिखाएं कि अपनी बहनों से कैसे पेश आना है, अपने बहनों की इज़्ज़त, लड़कियों को अपने भाइयों की इज़्ज़त, ठीक है। जो गैर महरम लड़के हैं उनसे पर्दे के बारे में बताएं, उनसे रिलेशनशिप ना रखने के बारे में बताएं। इसी तरह जो लड़के हैं, लड़कों को आप तरबियत दें, औरतों का एहतराम, औरतों की इज़्ज़त किस तरह की जाती है, उसके दिल में ये चीज़ें पैदा करें, ताकि कल को वो जब जवान होता है, जब माशरे में आए, तो लोगों, वो अपने देखने वाली औरतें हैं, जाने वाली जो औरतें हैं, जो लड़कियां पढ़ ली हैं स्कूलों में, कोचिंग में, तो वो उनका एहतराम करेंगे। फिर ये ना कि उसको आवाज़ें कसें, बल्कि उनका एहतराम करेंगे। ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। और मेरी गुजारिश उन बच्चों से है, उन नौजवानों से है कि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप किसी की बहन बेटी को अगर आप गलत निगाह से देख रहे हैं, तो आप ये भी याद रखें कि आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी हैं, आपके भी बच्चे होंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिदायत दे इन सब चीज़ों से बचने की, ठीक है। एक तो ये चीज़ें हो गई कि वालिदैन इस तरफ तवज्जो दें। सेकंड में यही कहूँगा कि एक्सरसाइज़ को रूटीन बना लें, अपने रूटीन में शामिल कर लें। आप सुबह जब सो के उठ रहे हैं, उस वक्त की एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो मैंने मुख्तसर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके एक्सरसाइज नंबर 12 तक। तो ये सारी एक्सरसाइज आप अगर रोज़ाना सुबह नहीं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप शाम का वक्त रख रहे हैं। जिस वक्त आपको टाइम मिलता है, जिस वक्त आप फ्री होते हैं, उस वक्त आप उन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर लें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर बीमारियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर अव्वल तो मेरी दुआ है कि आप सब सेहतमंद रहें, लेकिन जिनको पेट की बीमारी है, घुटने में दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो इस एक्सरसाइज को अपनाएं
तो इससे वो देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर उनको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज से आपको बहुत इसके फ़ायदे हासिल होंगे। तो यही मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप यूट्यूब चैनल को देखते रहें। इसमें मैं आप लोगों को वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक की तरबियत दूंगा इसके अंदर, इसके क्लास दूंगा इसमें, जिसमें आप बआसानी अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकेंगे। किसी से अपने आप को बचाना है या किसी पे आपको हमला करना है, कोई आप पे हमला करने आ रहा तो आपको कैसे बचना है, उसको किस तरह मारना है, मतलब उससे किस तरह बच के आपको साइड होना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बताता रहूँगा। अगर आपने अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आने वाली वीडियो ये आप तक आती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो टेक्निक है स्टिक फाइट के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा, नैनचकू के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा, कराटे के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा, और रूटीन जो डेली एक्सरसाइज है जो आपके पेट के लिए, आपके बाजू के लिए, आपके गर्दन के लिए, आपके जिस्म के तमाम आज़ा के लिए जो एक्सरसाइज ज़रूरी है वो एक्सरसाइज मैं आपको बताया करूँगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज ही आपको डॉक्टरों से बचाएगा। अस्पताल में जाके आप बेड पे लेटेंगे, फिर आपका इलाज हो रहा है, तो अस्पताल से तो तौबा है, अल्लाह ताला किसी को भी अस्पताल ना पहुंचाए। तो मेरे भाइयों, अगर आपको फ़िट रहना है तो एक्सरसाइज को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज अगर आपकी ज़िंदगी में आप शामिल कर लेंगे, नमाज। अगर आप नमाज, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना शुरू कर दें तो आपको दीगर जो एक्सरसाइज है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ टेक्निक आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नमाज वो एक्सरसाइज है कि इससे आपकी तमाम बीमारियां दूर होंगी अगर आप तरीके से नमाज को अदा करें, पाबंदी वक्त के साथ, बावज़ू होकर। क्योंकि आप जब वज़ू कर रहे हैं और चेहरे को धो रहे हैं, मसा कर रहे हैं, नाक पे पानी डाल रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, पैरों को धो रहे हैं, कोहनियों तक हाथ धो रहे हैं, तो ये वज़ू के अंदर भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। और नमाज के तो सुबहान अल्लाह कुछ कहने ही नहीं, नमाज के तो बहुत फ़वाइद हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। नमाज जो है आपको एक तो सवाब भी है, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म भी दिया है कि नमाज का एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज कायम करें, और उसके साथ साथ ये हम पे फ़र्ज़ भी है। तो नमाज पढ़ें, नमाज के फ़वाइद भी हैं और आपकी जो है एक्टिविटीज़ भी, आपके एक्सरसाइज भी इसमें हो रही है। और जो है टेक्निक्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल देखते रहें। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन हज़रात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ मिलता रहूँगा और मज़ीद गुफ्तगू होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नैनचक के मुताबिक बताऊंगा कि नैनचक जो तरीका है, नैनचक से काम किस तरह लेना है, नैनचक से फाइट किस तरह करना। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि नैनचक अगर आपको जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इससे नाजायज़ करें। ये ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो अब आते हैं नैनचक की तरफ। नैनचक देखिए, ये लकड़ी पे बना हुआ है, ये लकड़ी है और ये इसमें जंजीर से जो है, लोहे की जंजीर से ये इसके बनाया गया, इसकी बनावट है। आप अगर नए एक्सरसाइज करने वाले और नया सीख रहे तो आप ये वाले नैनचक इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्लास्टिक पे और रबर पे बना हुआ जो आता है वो वाले नैनचक लें, ठीक है। अब इस नैनचक भी क्या, ये एक लकड़ी वाली है, वार है ना, लकड़ी से जिसका आप फाइट करना चाहते हैं लकड़ी से मार लें। और ये आपकी जो है ये भी लकड़ी है। ये फाइट ऐसा कि आप किसी को मार रहे हैं तो वो बंदा भी जख्मी हो जाएगा इससे, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपको वार करना है किसी के ऊपर, तो किस तरह से वार करना है, ठीक है ना। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं नैनचक का जो तरीका है। ये आपको ऐसा मारना है कि ये बंदे के ये सर पे आगे लग रहा है, ठीक है। और ये इस तरह उठा रहे हैं आप, ये इस जगह पे लगेगा आगे, ये नैनचक आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे, ठीक है। और ये घूम के आगे ये सर पे। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। ये सीधा इधर लेकर आना है और ये तेज में जाएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने की बात है।
ये आपको प्रैक्टिस इस तरह करना है कि ये करते हुए आपके पैरों पे आगे नहीं लगे ये, ठीक है। आप जब इसको उठा रहे हैं तो ये आके आपकी पीठ पे ना लगे और ना आपकी घुटनों पे टकराए आके, ऐसा ना हो कि आपके पैरों पे टकरा जाए और आप जख्मी हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करना आपको। फिर आप उल्टे हाथ पे ले लेंगे, ठीक है। उल्टे हाथ पे भी लेके इसको यही एक्सरसाइज है, पीछे लेकर आया और ये, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये देख लें, सही है। इस तरह करोगे आपको प्रैक्टिस में यहाँ लाके फंसाना है ये, और ये सामने मारना है, सही है। ये यहाँ लाएगा और ये सामने, यहाँ और ये सामने, यहाँ और ये सामने, यहाँ और ये सामने, ठीक है। अब जो है इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो आप देख लें कि पहले तो आपको ये वाली प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 करके 3 कोर्स ये करना है, क्योंकि शुरू में आपके जो है ना ये हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो आप कम से कम टाइम लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप खड़े हो जाएंगे इस तरह। अब ये जो बंदे को सामने मारना है, समझ लीजिए आप जो मार रहे हो आप किधर भी मार सकते हो, ये यहाँ भी लग सकता है, ये सर पे भी लग सकता है, ये पैर पे भी मार सकते हो, ये वाली जो आप स्टाइल से जो मारोगे ये, ठीक है। ये हाथ को आपको ऊपर रख लेना है, यहाँ पे इस जगह पे से उठा लेना है, सही है। और ये आपको यहाँ लाना पीछे, ये हिट करना है, ठीक है। ये हिट करना है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे वो पीवीसी पाइप रबर से जो बनी हुई आती है नैन चाकू, उससे करेंगे, ठीक है। लकड़ी वाले से नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये आपको टेक्निक पता नहीं है, आपके जिस्म में आके ये खुद लग सकता है। इस तरह से मारने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बैलेंस का पता है। यदि आप ये मारने के बाद अगर नैन चाकू ऐसे रख लेते हैं तो फिर दोबारा वार कैसे करेंगे आप, तो इसीलिए ये आप ये इस साइड पे आ रहा और ये आपने मारा दोबारा इसको ये साइड पे ले आया, ये मारा दोबारा इस साइड पे ले आया, इस तरह मार के दोबारा साइड पे लाके ऐसे पकड़ ले सकते हैं आप, उसको दोबारा ये पकड़ लिया, ठीक है। इसी तरह आप उल्टे हाथ पे जब ले लेंगे, दोनों हाथ की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाथ पे यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको रोज़ की आपकी ये डेली रूटीन में आप इसको शामिल करें और डेली जो है आपको ये एक्सरसाइज करके आपको प्रैक्टिस करनी है इस नैन चाकू का इस्तेमाल। बाकी में आपको मज़ीद जो है और एक्सरसाइज है, नैन चाकू कैसे चलाते हैं, किस तरह फाइट करते हैं और जो दीगर स्टेप है वो सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। आज इतना ही है। अभी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी भाई जो देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टिक फाइट है, स्टिक के मुतालिक भी मैं आपको बहुत जल्द स्टिक पे भी आऊँगा, ठीक है। तो आज इसके मुतालिक बात हुई, स्टिक पे भी बात करेंगे हम।
Holy moonlight full of grace, will you shed light on my name? I've been burning up these fires, floating alone and keeping space. No, my love won't be that way. I've been burning